Question is 268 missing number. Question is very simple. क्या बोल रहा है question? Question is saying we are given an array of nums of integer which contains n distinct numbers in the range 0 to n, and we have to return the only number in the range that is missing from the array. That is, हमें बोल रहे हैं कि we are given a array of size n, and in that array we have numbers containing 0 to n. Normally क्या होता है, 0 से n minus 1 तक जाता है, that is n integer. So this is saying कि हमारे पास एक ज्यादा है, the range is 0 to n and there is one number missing, and हमें डायरेक्ट बोल रखा है कि it is distinct, every number is distinct, तो copies की कोई chances नहीं है, only one is missing and we have to return only that number. I will be telling you 5 different approaches. Okay, examples easy है, इसमें 2 नहीं है तो 2 होगा, इसमें length 2 है तो, और 0 1 2 missing है तो 2 है, and lastly here 8 is missing, there is 8. Examples easy है, देख लेना, हो जाएगा. What I'm going to I will be explaining 5 different approaches of this code. Like इसके भैया 5 लेंथ ही 2 approach. वाला भैया लेंथ Okay, 2 वाला हाँ. एग्जांपल में 2 डिस्टेंस ओके, हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोला हमारा रेंज इज 0 to n एंड बोथ आर इंक्लूडेड, राइट? तो हमारे इसमें हमारा लेंथ ऑफ एरे इज 2 1 2 नॉर्मल 2, बट उसमें क्या है, 0 और 1 है, 2 नहीं है, इसलिए 2 इज द आउटपुट. एक्सप्लेनेशन, सिंस देयर इज two numbers, the range is from 0 to 2, 2 is missing, that is why the output is 2. Okay, 5 approaches like I was saying. Let's start with brute force. Brute force is 1. Sorry. Second is sorting plus index matching. Sorry. Index matching. Okay, that is the fourth approach, math formula. एक और अप्रोच है XOR ऑपरेशन यूज करके. हाँ, that is the optimal one. And the fifth is using XOR. कोई third नहीं बताया. Third is basically we will use a set and then we will be checking कि कौन है नहीं है. That is basically using a hash set. These are the 5 approaches. Set वाला not that complicated, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा. Basically हम क्या करेंगे, we have the array में जो भी elements हैं हम एक set बनाएंगे and हम एक traverse करेंगे from I to end n-1 पूरे चलाएंगे and we will store everything in the hash set. Then हम एक और बार iterate करेंगे second traversal में, we will check कि if ith element, no, ith index is in the set or not. Basically I will show you the code, इससे समझ में आएगा. Let me code it for you. Int n is equal to nums dot length, set integer set is equal to new hash set
and for int I of nums set dot add I for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, if set dot contains इसका not I, then return Yeah, I, num side. नहीं I होगा, I will explain रुक जाओ, return n क्यों है, यहाँ देखो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने फॉर ईच लूप में हमने सारे सेट के एलिमेंट्स को सेट में सॉरी नम्स के एलिमेंट्स को सेट में डाल दिया। सेकंड टाइम हम क्या चेक कर रहे हैं, सेकंड हम इंडेक्स से चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो 0 से लेकर n n तक, 0 से लेकर n माइनस, ये लूप कहाँ तक चल रहा है, 0 से n माइनस 1 बिकॉज इट लेसर देन n, तो एवरी एलिमेंट फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 शुड बी इन द लूप, वो चेक कर रहे हैं हम कि इट्स इन द लूप और नॉट, इट्स इन द सेट और नॉट। अगर वो सेट में नहीं है दैट मीन्स दैट इज द मिसिंग नंबर, सो हम उसको आई रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज द मिसिंग नंबर। और इसके बाद अगर ये पूरा लूप चल जाता है then that means the missing number is n because हम n minus 1 तक चेक कर चुके हैं। let's run this, okay, कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं है बिकॉज सेट्स की वजह से हमारा स्पेस भी बढ़ रहा है एंड हम दो लूप भी लगा रहे हैं, इट्स नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। ब्रूट फोर्स में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड लूप बनाते हैं। क्या करेंगे, मैं तो ऐसे ही बना देता हूँ, हम एक फॉर लूप लेंगे फ्रॉम आई टू n माइनस 1, फिर एक और फॉर लूप लेंगे जो चलेगा आई टू n माइनस 1, I to n minus 1 and we will be checking key for if, हम एक फ्लैग बना लेंगे, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक boolean flag that will be false, और हम चेक करेंगे यहाँ if nums of j is equal to I, flag is equal to true। और लास्ट में इस फॉर लूप के बाहर, इस फॉर लूप के बाहर we will check if flag is false। क्या करना है, लास्ट में हम चेक करेंगे कि फ्लैग अगर फॉल्स है देन वी विल रिटर्न आई, एंड वही लास्ट में जैसा था, रिटर्न एन, यही है। ब्रूट फोर्स कुछ था ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। क्या किया हमने, हम बेसिकली बाहर वाले लूप में इंडेक्सेस चेक कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और अंदर वाला लूप जस्ट बार बार कंप्लीटली ट्रैवर्स करके चेक कर रहा है कि वो बाहर वाला इंडेक्स मैच हो रहा है कि नहीं। if it matching then if it's matching then ये वाला हमेशा कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, तो वी विल लास्ट में हम n रिटर्न करेंगे, और जहां हमें मिसिंग मिल जाएगा वी विल रिटर्न दैट डायरेक्टली। फॉर्मूला, ओके, मैथ फॉर्मूला, सबसे पहले मेरे को ये बताओ व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज द मैथ फॉर्मूला राइट। n into n plus 1 by 2 वही वाला। हाँ एग्जैक्टली, वही हम करेंगे। क्या करेंगे, वी विल टेक एक्सपेक्टेड sum is equal to n into n plus 1 divided by 2, और एक रियल सम लेंगे, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से
फॉर लूप में ऐड करेंगे उसको, रियल इज इक्वल टू रियल प्लस नम्स ऑफ आई, और एंड में वी विल रिटर्न रिटर्न एक्सपेक्टेड माइनस रियल। यहाँ कुछ नया बीच में कोई रिटर्न नहीं है, वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपेक्टेड में सम इतना होना चाहिए और रियल में जो मिसिंग है वो नहीं होगा बस, तो हम माइनस करके डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देंगे। मैथ हो गया। एंड द लास्टली एक्सोर। एक्सोर इज द बेस्ट एंड ऑप्टिमल अप्रोच। टेक्निकली मैथ फॉर्मूला भी ऑप्टिमल ही है। स्पेस है सम कांस्टेंट स्पेस एंड वन ट्राइवर्सल, दैट इज द लीस्ट यू कैन गो, बट स्टिल एक्सोर को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं बिकॉज इट्स बिट मैनिपुलेशन एंड इंटरव्यू वगैरह में वो ज्यादा काम करता है, रिक्रूटर को ज्यादा पसंद आता है वो अप्रोच, दैट्स व्हाई। एक्सोर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सोर? एक्सोर एक्सोर stands for exclusive, और XOR इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। उसमें क्या बोलता है, अगर A XOR 1 is 0, 0 XOR 0 is also 0। बेसिकली अगर सेम एलिमेंट्स हैं वो 0 देगा, और अगर ऑपोजिट बिट्स हैं तो वो 1 देगा। लेट्स से हमारा नंबर है 10। 10 को हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? 1010, राइट। सो हमारा प्रॉपर्टी बोलता है कि XOR ऑफ एनी नंबर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। क्यों? बेसिकली हमने क्या बोला था, हमने दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10। इन दोनों का जोर करें हम अगर, सो इट विल बी या इन दोनों को जोर करने पे ऑब्वियसली सब 0 होगा क्योंकि सेम बिट 0 दे देता है। दैट इज द प्रॉपर्टी कि हम जब अपन वो नंबर खुद के साथ एक्सॉर करेगा तो इट विल ऑलवेज गिव 0। एक्सॉर का कोड, XOR का कोड इज लेट्स सी nums dot length int res is equal to n for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. We will do res XOR I and res XOR nums of I. हेलो, हाँ बोलो। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। And return res. ओके, ये हो गया कोड।